بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس میں ہم لوگ سیکھے تھے کہ تجوید القرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہماری زندگی میں عمل پیرا کرنا چاہیے. اگر ہم تجوید سیکھتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہماری شفاعت کرتا ہے. اگر ہم تجوید کے قواعد کے خلاف قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید لوگوں پر لعنت کرے گا. تو آج سے ہم لوگ پراپرلی تجوید سیکھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے تختی نمبر 1 مفردات. مفردات کیا ہے؟ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. جس طرح انگلش کے لیٹرز کو الفابیٹ کہتے ہیں، اسی طرح عربک کے کیا ہے؟ الفابیٹس کو مفردات کہتے ہیں یا پھر حروف تہجیبی کہتے ہیں. تو عربک کے مفردات، عربک میں مفردات کل 29 ہیں، یعنی کہ 29 ہیں. کل مفردات 29 ہیں اور ان مفردات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے صفات کے لحاظ سے. صفت مطلب حرف کی کیا ہے؟ 2 پارٹس ہیں. ایک کیا ہے؟ حرف کے مخرج صحیح ہونا چاہیے اور دوسرا صفت. مخرج مطلب وہ کہاں سے نکلے گا؟ ہمارے منہ میں سے. اور صفت مطلب کہ اس کو کس طرح سے ہم لوگ پڑھیں گے، موٹا، باریک یا کس طرح. اس طرح یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حروف تہجی. حروف تہجی مطلب مفردات الف سے یا تک کتنے ہیں؟ 29 حروف ہیں. حرف ایک لیٹر کو کہتے ہیں حروف، لیٹرز کو کہتے ہیں حروف، یعنی جمع. حرف کی جمع حروف ہے. تو الف سے یا تک 29 حروف ہیں اور ان کو کیا ہے؟ اس کے 2 پارٹس ہیں. حرف کے 2 پارٹس ہیں، ایک تو مخارج ہے اور دوسرا ہے صفات. ایک تو مخارج، دوسرا صفات ہے. تو یہاں پر مخارج کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم یہاں پر صفت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ صفت کو بہت ہی آسان طریقے سے یہاں پر سمجھایا گیا ہے. یہ حصہ 1 کیا ہے؟ صفت ہے. یہ حصہ 2 مخارج ہے. تو یہ حصہ 1 میں یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں اور یہ باریک پڑھے جانے والے حروف. اور تیسرا حصہ ہے کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف. آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے سلائیڈ؟ جی ہاں باجی آ رہے ہیں. ہاں. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف تہجی یعنی کہ مفردات کو صفات کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. موٹا پڑھے جانے والے حروف، باریک پڑھے جانے والے حروف اور کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف. اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں کون سے حروف آتے ہیں، باریک پڑھے جانے والے حروف میں کون سے حروف آتے ہیں، اور کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف میں کون سے حروف آتے ہیں. حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اور باریک پڑھے جانے والے حروف 3 ہیں. اور کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف 3 ہیں. اور یہ باریک پڑھے جانے والے حروف کتنے؟ باقی کے 19 حروف ہیں. موٹے پڑھے جانے والے حروف
7 है, बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ 3 हैं, और ये कभी बारीक और कभी मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ 3 हैं, और ये बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ 19 हैं। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 29 हुरूफ है, 29 हुरूफ हैं। इसी तरह मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ को हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं, और बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ को हुरूफे मुस्तफिला कहते हैं, और कभी मोटा और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ को शेबा मुस्तालिया कहते हैं। तो हुरूफे मुस्तालिया 7 हैं: खौ, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, गैन, कौफ। और कभी मोटा और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ सिर्फ 3 हैं: अलीफ, लाम और रॉ। सिर्फ हमको क्या याद रखना है? हुरूफे मुस्तालिया याद रखना है, और शेबा मुस्तालिया, यानी क्या, कभी मोटा और कभी बारीक पढ़े जाने वाले 3 हुरूफ। बाकी के क्या है? हमको बारीक ही हुरूफ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? हुरूफे मुस्तालिया है। ये है हुरूफे मुस्तालिया। हुरूफे मुस्तालिया 7 है: खौ, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, गैन और खौफ। ये है, और इन हुरूफ को क्या है, हर हाल में मोटा पढ़ना चाहिए। इसकी थोड़ी हमें प्रैक्टिस करना है, बाकी हमको आसानी से निकल जाएंगे सारे मखारिज। लेकिन सिर्फ हुरूफे मुस्तालिया को हर हाल में मोटा पढ़ना है, तो इसलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई एक माइक ऑन करके बोल सकते हैं इन हुरूफ की ये जो तकसीम है वो? हुरूफ तहजी यानी के मुफरदात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ, बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ, और कभी कभी मोटा और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ। हाँ, और मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ कितने हैं? 7 मुस्तालिया कहते हैं इसको। हाँ, जिन्हें हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं: खौ, सौद, ज़ौद, तो, तो, ज़ो, ज़ो, गैन, खौफ। हाँ, और कभी मोटा और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ 3 हैं: अलीफ, लाम, रॉ। और रा। शेबा मुस्तालिया। और बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ बाकी के 19 हैं: बा, ता, जीम, हा, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये सब क्या है? बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं। इसका और एक नाम क्या है बाजी? जिसका ये कभी मोटा और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ। नहीं, सिर्फ बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ का नाम। हाँ, 1 मिनट, मुस्तफिला है, यहाँ पर है, मुस्तफिला है। बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ हुरूफ मुस्तफिला है। अब हम देखेंगे मखारिज। मखारिज क्या है? मखरज की जमा है। जिस तरह मुफर्रद की जमा मुफरदात हैं, उसी तरह मखारिज
क्या है, मखरज की जमा है। मखारिज मखरज की जमा है। लघवी माने क्या है, इसके निकलने की जगह, यानी कि हर्फ के निकलने की सही जगह को मखरज कहते हैं। एक हो तो मखरज और एक से ज्यादा हो तो मखारिज। मुंह इस्तिलाही माना, यानी कि हम तजवीद में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मुंह के वो हिस्से जहां से हुरूफ अदा होते हैं उसको क्या कहते हैं, मखारिज कहते हैं। और ये क्या है, कुल 5 मवाजे हैं। ये कुल 5 मवाजे हैं। इसके बाद जो है 17 मखरज हैं। तो आप लोगों को समझ में आने के वास्ते ये है कि इंडिया में क्या है, स्टेट्स रहते कौन से, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ज्यादा तो इन्हीं 3 स्टेट से हैं हम लोग इस ग्रुप में। तो ये 3 स्टेट हैं और गुजरात 4, महाराष्ट्र 5। तो ये 5 स्टेट्स होने के बाद फिर हमारा अलग अलग शहर का नाम है ना, जैसे कि तेलंगाना में है तो हैदराबाद है, मुर्शिदाबाद है, इस तरह से। और फिर कर्नाटका में बेंगलुरु, चन्नपटना, इस तरह है। और महाराष्ट्र में पुणे वगैरह, आंध्र प्रदेश में कड़पा, करनूल, इस तरह से आते नहीं। तो ये क्या है, मवाजे क्या है, स्टेट्स के नजरिए में आते हैं ये लोग। हलक, लिसान, शफ्तैन, जौफे दहन, खश्यूम। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग हलक। हलक यानी कि थ्रोट। इसमें फिर अलग से 3 मखरज होंगे। ये इसको क्या कहते हैं, मवाजे कहते हैं। ये 5 जो है मवाजे हैं। फिर इसके बाद मखरज होंगे इसमें अलग अलग से। लिसान मतलब टंग, जबान। और शफ्तैन मतलब लिप्स, हमारे होंठ। जोफे दहन मतलब एम्प्टी माउथ, यानी कि जो हमारा मुंह का खाली हिस्सा होता है वो। और खश्यूम, खश्यूम मतलब नोस, नोस में, ये नाक में जो हम गुन्ना करते हैं, सुम्मा, इन्ना, इस तरह से। ये गुन्ना के लिए जो इस्तेमाल होता हमारा नाक की बांस का हिस्सा जो, उसको क्या कहते हैं, खश्यूम। तो ये 5 मवाजे हैं, हलक, लिसान, शफ्तैन, जौफे दहन, खश्यूम। आप में से कोई माइक ऑन करके बोल सकते हैं इसका मखारिज का डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये मखरज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है इसमें। हुरूफ तहजी यानी कि अरबिक अल्फाबेट्स कितने हैं, 29। और ये 29। हाँ, और ये हुरूफ हल्की, हुरूफ हल्की यानी गले से अदा होने वाले हुरूफ। अब इनको क्या है, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। गले के निचले वाले हिस्सा, गले का निचले वाला हिस्सा, और फिर गले का दरमियानी हिस्सा वसत हलक, और गले का क्या है, निचला हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, ये गले का निचले हिस्से को अक्साए हलक कहेंगे, हलक। गले के दरमियानी हिस्से को वसत हलक कहेंगे, और गले के ऊपरी हिस्से को अदनाए हलक कहेंगे। यहाँ से क्या है, थोड़ा 1 मिनट में देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ाती हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं। उर्दू में है ना। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गले के
नीचे वाला हिस्सा अक्साए हलक, गले के दरमियान का हिस्सा वसत हलक, और गले का ऊपर वाला हिस्सा अदनाए हलक। यहाँ से हर जगह से दो दो हुरूफ निकलेंगे। तो हम लोग देखें कि मवाजे 5 है और हलक में क्या है, 3 मखरज बनते हैं। गले के निचले वाला हिस्सा, गले का दरमियानी हिस्सा और गले का ऊपरी हिस्सा। इसी तरह होठों से अदा होने वाले हुरूफ, जब दोनों होठ आपस में मिले तो बा और मीम अदा होगा। हाँ, जब सनाया उलिया कहते हैं, ये हमारे ऊपर के दोनों दांतों को सनाया उलिया कहते हैं। ये सनाया उलिया का किनारा नीचे वाले होठ से लगे तो तब कौन सा लेटर निकलेगा, हर फा, फा। इसी तरह हाँ, दोनों होठों को गोल करने से हर्फ निकलेगा वाव। दोनों होठों को गोल करने से वाव निकलेगा। इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं हुरूफे लिसानिया। लिसानिया मतलब जबान, जबान से अदा होने वाले हुरूफ 18 हैं। जबान की नोक का किनारा सनाया उलिया के साथ वाली दांतों पर लगेगा तो लाम, नून, रॉ अदा होगा। जब जबान की जड़ तालू के नर्म हिस्से से लगेगी तो कौफ अदा होगा। जब जबान की जड़ तालू के सख्त हिस्से से लगेगी तब अदा होगा काफ। जबान का जबान का दरमियान ऊपर तालू के दरमियान से लगे तो अदा होंगे जीम, तीन, या। जबान का दरमियान किनारा जब ऊपर के दाढ़ों से लगे तो हर्फ अदा होगा ज़ौद, ज़ौद। और जबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगे तब अदा होंगे ता, दाल, तो। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। जस्ट यहाँ पर क्या है, बताया जा रहा है कि लिसान से कौन कौन से मखरज निकलेंगे। इसी तरह जबान की नोक सनाया उलिया के सरे से लगे तब अदा होंगे 3 हुरूफ सा, जाल, वो। और जबान की नोक नीचे सामने के दांतों पर लगे तो तब अदा होगा ज, सीन, सौद। सौद है ये, जौद नहीं है, ये सौद है। ज, सीन और सौद। तो ये मखरज हम लोग सब आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। आज हम सीखेंगे हुरूफे हल्किया। सबसे पहले हम सीखेंगे हुरूफे हल्किया। वो सब मखरज हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक एक क्लास में थोड़े थोड़े सीखेंगे। आज हम हुरूफे हल्की सीखेंगे। हुरूफे हल्की 6 हैं। हुरूफे हल्की 6 हैं। हमजा, हा, ऐन, हा, गौन, हा। तो हलक, ये हलक के पास 3 मखरज बनते हैं। एक अदनाए हलक ऊपरी हिस्सा, वसत हलक दरमियानी हिस्सा, और अक्साए हलक यानी हलक का निचला हिस्सा जो सीने की तरफ है। तो अदनाए हलक से निकलेंगे 2 हुरूफ गौन, क़। हमने पढ़ा था ना कि सिफत के लिहाज से हुरूफ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ, बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ, और कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ने वाले हुरूफ। तो गौन और क़ा किस में आते हैं, आप लोग देखिए, मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ में आते हैं, हुरूफे मुस्तालिया में। हाँ, इसका मखरज है हलक का ऊपरी हिस्सा, और गौन ख़ा की सिफत है मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गौन ख़ा, ये अदनाए हलक यानी हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होंगे। इसी तरह वसत हलक यानी के हलक का बीच का हिस्सा,
यहाँ से 2 हुरूफ अदा होंगे, आइन हा, आइन हा, आइन हा। इन दोनों हुरूफ को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? बारीक ही पढ़ेंगे। और अक्साए हलक, अक्साए हलक है हलक का निचला हिस्सा यानी सीने की तरफ का। और यहाँ से 2 हुरूफ निकलेंगे, हमजा हा, हमजा हा। हाँ हाँ, हलक के मखरज को, हुरूफ हलकी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 अदनाए हलक, नंबर 2 वसते हलक, नंबर 3 अक्साए हलक। अदनाए हलक से 2 हुरूफ अदा होंगे, वाइन खौ। वसते हलक से 2 हुरूफ अदा होंगे, आइन हा, आइन हा। अक्साए हलक से 2 हुरूफ अदा होंगे, हमजा हा, हमजा हा। कोई बता सकते हैं हुरूफ हल्की? यहाँ पर रोमन में भी है, अगर किसी को देखकर बोलना है तो देखकर भी बोल सकते हैं आप लोग। हुरूफ हल्की 6 है। हुरूफ हल्की को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अक्साए हलक, वसते हलक, अदनाए हलक। अक्साए हलक से 2 हुरूफ अदा होंगे, हमजा हा। वसते हलक से 2 हुरूफ अदा होंगे, आइन हा। अदनाए हलक से 2 हुरूफ अदा होंगे, वाइन खौ। हाँ, अक्साए हलक मतलब सीने की तरफ वाला हिस्सा, हलक का निचला हिस्सा। वसते हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा। और अदनाए हलक, हलक का मुंह की तरफ का हिस्सा यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की क्लास में क्या है, हम लोग सीखे कि सिफातुल हुरूफ क्या है। हुरूफ के 2 हिस्से हैं, एक सिफत है और दूसरी मखरज। सिफत के लिहाज से मुफरदात, मुफरदात यानी कि अलग अलग हुरूफों को मुफरदात कहते हैं। मुफरदात 29 हैं और 29 हुरूफ को सिफत के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ, बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ और कभी मोटा और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ। मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं और हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, खौ, सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, गैन, खौफ। बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ 19 हैं, बा, ता, जीम, हा, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ 3 हैं और वो है शेबा मुस्तालिया, अलीफ, लाम, रा। और रा। हाँ, सिफत के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और मखरज, मखरज क्या है? मखारिज, मखरज क्या है? हुरूफ के निकलने की सही जगह को निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज की जमा मखारिज है। और मखारिज के क्या है? 5 मवाजे हैं। 5 मवाजे कौन कौन से हैं? हलक यानी कि थ्रोट, हलक, लिसान यानी कि लिसान, टंग, शफ्तैन यानी कि शफ्तैन, लिप्स, जोफे लहर, ज़फ़रैन, एम्प्टी माउथ, खशूम यानी कि खशम, नोज। नोज। और ये 5 मवाजे में से पूरे 17 मखरज निकलते हैं। 17 मखरज में है हलक, हलक के 3 हिस्से, अदनाए हलक, वसत हलक और अक्साए हलक। उसके बाद है हुरूफे शफवी और उसके बाद है
जबान से अदा होने वाले हुरूफ 18 हैं। और आज हम पढ़े हैं हुरूफ हलकी। हुरूफ हलकी के मखारज सीखे हैं आज हम। हुरूफ हलकी 6 हैं और इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अक्साए हलक, वसते हलक, अदनाए हलक। अदना हाँ, अक्साए हलक सीने की तरफ वाला हिस्सा, यहाँ से अदा होगा हमजा हा, इसको नॉर्मल तरीके से अदा करेंगे। वसत हलक है, हलक का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से 2 हुरूफ अदा होंगे, आइन हा। और अदनाए हलक है हलक का मुंह की तरफ का हिस्सा, यहाँ से 2 हुरूफ अदा होंगे, गौइन ख। और ये गौइन ख सिफात के लिहाज से कौन से हुरूफ है? ये हुरूफ मुस्तालिया है, इनको मोटा पढ़ना चाहिए। और मखरज के लिहाज से ये अदनाए हलक से अदा होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास मुकम्मल हुई। 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। आप लोग जो है कोई भी डाउट रहा तो पूछ सकते हैं।